Welcome back. You are going to love this video because I am going to introduce you to a gentleman. He's from India and he's a furniture manufacturer. Metal has been part of everybody's life, as we all understand, right from the Big Bang Theory to the weapon creation, and metal has been part of human evolution. It is believed that the metal actually caused the birth of Earth. Well, nevertheless, that was too scientific. But in this video, we are going to unveil some facts about Indian furniture manufacturing companies, and we'll compare their products with Chinese products, because metal, as we all know, have been imported from China and people have been confused persistently. In this video, we will unveil some facts that how Indian products are not only very cost effective but also very superior in quality. We will talk in detail. We will try to understand the process. Trust me, when you are going to buy a furniture unit, you should know the manufacturer. In this video, we will conduct a very due diligence. We will try to understand how good tables are manufactured. As an Indian, I request you all, please like the video and share with your friends. Let's begin the video now. हेलो सुनील जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए सर। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे व्यूअर्स के लिए, और मतलब जनरली वीडियो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर वन रीजन और टू, but this video is important for multiple reasons. बिल्कुल। First of all, we are going to talk about metal. There's a constant competition between India and China when it comes to metal. Mostly people in India, they're confused when it comes to metal. We'll try to understand that as well. But I'm with the gentleman. The third and the most important reason is I'm with the gentleman who is known for being a man of steel, a man who knows steel in and out, and of course, the steel runs in his mind. You are an architect, right? आपकी क्या छोटी सी जर्नी थी हमारे व्यूअर्स को बताएं, एंड यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, राइट? वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, पर छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, कैसे स्टील बिजनेस में काम किया, एंड व्हाट इज योर मोडस ऑपरेंडी? सर, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है जी। कंपनी का नाम आर्क डिज़ाइन है जी, और हम स्टील के अंदर करीबन 2002 से काम कर रहे हैं जी। और हम लोग अभी क्या है कि हम लोग डाइनिंग बेस बना रहे हैं मेटल के अंदर, राइट, जो कि प्योर टाइटेनियम कोटिंग वगैरह होता है जी। इसके अंदर कोई लैकर प्लेटिंग नहीं होती, कोई स्प्रे पेंट नहीं होता, और इसके अंदर हम जो बेस बना रहे हैं वो बहुत हैवी बेस बना रहे हैं, क्योंकि पत्थर एक्चुअली में क्या है कि बहुत भारी होता है, 100 किलो से 150 किलो तक का पत्थर होता है, तो उसका वेट लेने के लिए हम लोग ये बहुत हैवी बेस बनाते हैं बहुत कम प्राइस के अंदर। ओके। चक्कर क्या है कि जो चाइना से बेस आते हैं वो टोटली 201 ग्रेड के अंदर आते हैं, जो बिल्कुल लोअर ग्रेड होता है स्टेनलेस स्टील का। हम लोग जो बनाते हैं 304 और 202 के अंदर बनाते हैं। अगर किसी की अच्छी रिक्वायरमेंट हो तो हम 316L तक भी चले जाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई चाहे कि नहीं हमें बहुत हायर एंड क्वालिटी चाहिए, हम 316L में भी बना देते हैं। तो क्या है कि हमारे बेसों के अंदर क्या है कि ये प्योर टाइटेनियम कोटिंग होने के कारण 10 से 15 साल भी ये हिलेगा नहीं और बहुत बढ़िया चलेगा। पर जो चाइना के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो स्प्रे मार के वो दे रहे हैं 202 ग्रेड के अंदर, वो 2 साल 3 साल के तो शेक कर जाएगा और हिल के आपको दोबारा हमारे पास दोबारा आना पड़ेगा और हमसे लेना पड़ेगा। तो आप चाइना को छोड़िए और एक बार आके विजिट कीजिए, देखिए। अभी मैं आपको फैक्ट्री भी लेके चलूंगा, बनते हुए सामान भी दिखाऊंगा। यू हैव बीन वर्किंग विद, एक और इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बता दें कि सुनील जी हैज बीन वर्किंग विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली ऑफ इंडिया, and of course you have been working with some of the best projects of the country. You have provided metal work to airports, to hospitals, to a lot of government agencies and many builders in Delhi NCR, right? चलिए, let's go to the factory. Yes, चलिए वहाँ चलते हैं अभी। आइए सर, मैं आपको आज अपने बारे में बताता हूँ जी। ये एक छोटी सी यूनिट है बट हम काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। अच्छा। और इसके अंदर सारा टोटल मेटल का काम होता है, वेल्डिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, बफिंग वगैरह सारा कुछ होता है। 304, 204, 308L, 306L, ये सर सब क्या है? इसके अंदर सर ये एक्चुअली में क्या निकल की मात्रा होती है। जैसे 202 के अंदर निकल की मात्रा कम होती है, 304 के अंदर निकल की मात्रा ज़्यादा होती है। हम लोग 304 और 202 में दोनों में हम काम करते हैं। तो आप इस तरह से पहले आप शीट लेते हैं? पहले हम जैसे ये शीटें खड़ी हुई हमारे यहाँ पे जी, तो ये हम शीट्स लेते हैं जिंदल वगैरह से। अच्छा। जिंदल से शीट लेते हैं और उसको फिर अपना डिजाइनिंग के हिसाब से उसको CNC करवाते हैं, कटिंग, बैंडिंग वगैरह सारा कुछ करवा के अपनी फैक्ट्री में लाके उसको मोल्ड करके वेल्डिंग करवा के शुरुआत करते हैं। ऑलराइट। अब जैसे ये वेल्डिंग हो जाता है तो इसके बाद ये ग्राइंडर से इसको पूरा ग्राइंड करके पूरी उसके अंदर जो वेल्डिंग के निशान है वगैरह वो सब कुछ निकाल के उसको बफ करके बहुत सुंदर पीस बना देते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे आपके साथ में। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद में अब मेटल में बेंड भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, मिनिमलिस्टिक भी है, कर्व्स भी है और थोड़ा सा डिटेलिंग भी होता है।
अब इसको हम डायरेक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, वो कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हैं जो इतना कॉस्ट इफेक्टिव कर पा रहे हैं और हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कर पा रहे? सर एक्चुअली में वो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो 201 होता है, उसके अंदर निकल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। पफिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे लड़के हैं वो जब तक माल को नहीं निकालते, जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाते कि अब ये पीस पीवीडी कराने लायक हो गया। ये जैसे कि हेयर लाइन मारा हुआ आप देखिए, तो इसके ऊपर हमने 600 नंबर तक मार के इसके ऊपर एक हेयर लाइन ब्रश मारा हुआ है, जिससे कि ये हेयर लाइन और मैटी लुक के अंदर ये फाइनल आ जाए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आपसे बात कर रहे थे वो है पॉलिश को लेके। मेरा चाइना और टर्की का जो अपना एक्सपोजर है उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने देखा है लोगों को अलग अलग तरीके से पॉलिश करते हुए, और बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, स्प्रे है, पेपर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और आप तो एक और टर्म आपने आज इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे पॉलिश का लोअर वर्जन से अपर वर्जन की तरफ बताएं कि वो किस तरह से पॉलिश होते हैं और उनके प्राइसिंग में कितना फ़र्क होता है। सर जैसे मैंने आपको बताया सबसे कि सस्ता क्या है वहाँ से स्टार्ट करिए। हाँ सर, सबसे सस्ता स्प्रे पेंट होता है जी। लोग अपने गन के अंदर पेंट भरते हैं और उसके ऊपर स्प्रे मार देते हैं, और वो जो चाइना में होता है, जो चाइना में होता है और मोस्टली इंडिया में भी होता है। उसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वो 1.5 साल में 2 साल के अंदर पपड़ी बन के उतर जाएगा और वो ब्लंट हो जाएगा। मतलब जो मेटल की फिनिश है, जो हम पॉलिश कर रहे हैं, बफ कर रहे हैं, वो पॉलिश को खा जाएगा। अच्छा। मतलब ऊपर की जो फिनिश है वो आने नहीं देगा, वो पेंट अपनी ही एक फिनिश दिखाएगा। ऑलराइट। दूसरा उसके ऊपर लेवल पे उसके ऊपर प्लेटिंग है। अच्छा। कि जो जैसे कि डिपिंग प्रोसेस होता है, तेजाब के अंदर डिपिंग करते हैं और उसको ये प्लेटिंग कर देते हैं, जिसमें वो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बड़े-बड़े टैंक्स होते हैं, टैंक होते हैं, इसको डिप कर दिया जाता है। या जो लाइटिंग भी उसी में जाती है, टेबल भी, सेंटर टेबल भी, वार्डरोब्स भी, पार्टीशन भी उसमें जाते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर पूरा केमिकल घुस जाता है, और उसकी भी लाइफ मेरे ख्याल 3-4 साल से मैक्सिमम 3-4 साल है। This is called electroplating? Electroplating, yes. Okay. This has a life of approximately 3.5 years. Yeah, Slowly it fades out over the period of time? जी। थोड़े समय के बाद वो बिल्कुल ही मतलब कलर भी डल हो जाता है और वो पिल ऑफ भी हो जाता है। ऑलराइट। अब सबसे सुपीरियर क्वालिटी कौन? एक तो इससे भी नीचे एक और है, शायद आप नहीं जानते। हाँ, हमने टर्की में देखा जहाँ पे फिल्म लगा देते हैं वो। हाँ, आई थिंक वो मेरे को मालूम नहीं है, कभी हमने करा नहीं। अच्छा। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सबसे सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी कर रहे हैं। ओरिजिनल पीवीडी करवा रहे हैं हम लोग। अच्छा। और ये टाइटेनियम कोटिंग है, पूरा एक बहुत बड़ा एक टैंक होता है, जिसको वैक्यूम किया जाता है, उसके अंदर मटेरियल को लटकाया जाता है और बहुत हाई एंड उसको गर्म किया जाता है। इसमें टाइटेनियम, एल्युमिनियम और क्रोमियम के ब्रिक लगे होते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोड़े जाते हैं। तो वो वेपोराइज्ड होके, मेटल वेपोराइज्ड होके मेटल के ऊपर एक मेटल की लेयर लगा लेता है। वाह। और उसके ऊपर जो गैसेज है और हीट है, उनसे वो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि गोल्ड मैट, गोल्ड मिरर। तो जो सरफेस की फिनिश है, जो मेटल की फिनिश है, वो उसको और ज़्यादा बाहर फेंकता है, तो फिनिश बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये 10 से 15 साल भी कहीं नहीं जाता, इतना सुपीरियर क्वालिटी है। ओके। हाँ जी। सर इसमें एक चीज़ और मुझे बताएं कि यहाँ पे अब जब फिनिश डिसाइड होते हैं, मैट गोल्ड पॉलिश के बाद में डिसाइड होता है या पहले डिसाइड होता है? नहीं, ये पहले डिसाइड होता है कि हमें गोल्ड मैट करवाना है या रोज गोल्ड मैट करवाना है या गोल्ड ग्लॉसी करवाना है। ये पहले ही डिसाइड होता है। उसके बाद हम लोग अपने अड्डे पे, और लड़के जो उसको बफ मारते हैं हाथ से, वो बाद में मारते हैं। ऑलराइट। मतलब अब क्या पर केजी के हिसाब से पॉलिश होता है? सर जितना आपका बेस का वेट बढ़ेगा, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्टिंग पॉलिश की बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जितना जितना मटेरियल बढ़ता जाएगा, वो पीस उतना हैवी हो जाता है, तो उसके ऊपर कॉस्ट पॉलिश की बढ़ती जाती है, क्योंकि एब्जॉर्बेंट बढ़ गए हैं उसके। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि जब पीवीडी भी होती है ना, तो वो पर केजी के हिसाब से होती है। जैसे मान लो कि एक पीस 10 किलो का है और एक पीस 50 किलो का है, तो पीवीडी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी जी। बट हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वो पत्थर हिलना नहीं चाहिए, और पूरी तरीके डिज़ाइन करके उसको हम पत्थर को हिलने नहीं देते, इतना तरीके से हम उसको बनाते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है सुनील जी हमने रखा हुआ है? जी सर। जी सर, जैसे मैंने बताया कि हम लोग मेटल के अंदर काम करते हैं, और ये हमारा सारा स्टॉक रखा हुआ है जी, अंदर तक है सारा स्टॉक। ओके। आपने बताया कि टाइटेनियम पॉलिश होती है हमारी, और हम सारा का सारा 204 304 करते हैं। ये सारा हमारा स्टॉक है? ओह आई डिडंट नो दिस। अच्छा, ऑलराइट, ग्रेट। ओके, तो ये सारा रेडी टू डिलीवर है, कहीं जाने के लिए तैयार है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये रेडी स्टॉक है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे शोरूम वाले जानकार हैं, वो जो मेरे से मटेरियल लेते हैं जी, और मेरे से पूछते हैं कि सर जी क्या क्या रेडी है, और मैं बताता हूँ, उनकी गाड़ियों में डलवा देता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे शोरूम्स के ऊपर सप्लाई है। चलिए, प्लीज कम दिस साइड। बिसाइड्स मेटल देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टेबल बेस।
जैसे सिर्फ मेटल तक लिमिटेड नहीं है। टॉप तो लोग अपने आप खुद बनवाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बेस में भी कभी कभी विनियर, मार्बल, अलग अलग पीसेस लोग लगाते हैं, उसका आप कैसे करते हैं? हाँ सर, देखो जिस डिजाइन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये है अपना विनियर पॉलिश है जी, अगर यहाँ पे हमें विनियर की जरूरत पड़ी है तो हम लोग विनियर लगाते हैं इसके अंदर जी। तो जिस जगह पे जिस डिजाइन के अंदर ये जरूरत होती है तो हम लोग वो भी कंबाइन करते हैं। राइट। सुनील जी, मैं वापस आपको पॉलिश वाले क्वेश्चन पे लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमारा पूरा फोकस आज प्राइसिंग को लेके भी है, चाइना से डायरेक्ट कंपटीशन में भी है। आज हम देखेंगे कि क्यों और कहाँ पे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लैग करते हैं। तो हम कहीं लैग नहीं करते, हम शायद कंज्यूमर की तरफ से लैग करते हैं, क्योंकि लोग सस्ता चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए चाइना से वो सस्ता प्रोडक्ट इंडिया में आता है। अगर वहाँ से आप अच्छा प्रोडक्ट मंगाएंगे तो वो भी उतना ही महंगा होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डन। उन्होंने तो खैर मार्बल भी नकली बना लिया, आप जानते हैं। हाँ, वो तो फिल्म बना के, वो फिल्म लगा के मार्बल लगा देते हैं जी। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम है। 2-3 साल के अंदर वो बिल्कुल बोल जाएगा और आपको फिर नया प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो आपको आप ओरिजिनल मार्बल ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, अच्छा ऑप्शन है। वेल, कमिंग बैक टू दिस, आप पॉलिश बता रहे थे कि जो सबसे पहले होता है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे ऊपर होता है पीवीडी। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉस्ट 100 रुपए है हाइपोथेटिकली, जस्ट फॉर अ लेमन्स कंपैरिजन, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो 100 बढ़ के कितना हो जाएगा? सर, अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम इसको कंपेयर करें तो ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स हो जाएगा, 300 हो जाएगा। या तो इसलिए प्राइस वेरिएशन आपके कॉस्ट में, आपके प्रोडक्ट में आता है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये था कि आप सिर्फ ऐसा क्यों है कि आप डाइनिंग टेबल बेस में ही एक्सपर्टीज है आपकी, आप सेंटर टेबल नहीं बना रहे, और इसमें भी आपने कुछ प्रोटोटाइप्स बना रखे हैं 50-60 डिजाइन्स, क्यों आप क्यूरेट नहीं कर रहे, क्यों आप बेस्पोक नहीं कर रहे? सर, एक्चुअली में क्या है कि मैंने 2022 से ये अपना डाइनिंग बेस का काम शुरू किया, तो मैंने बहुत सोचा, जब साइडें छोड़ी मैंने, कमर्शियल प्रोडक्ट सारे छोड़े, तो मैंने कहा कि क्या बनाया जाए। तो लोगों से बात करके, फर्नीचर वालों से बात करी, तो उनको है ना, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ऑर्डर दे देते हैं और 15 दिन बोल के भी 20-25 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक भी मटेरियल नहीं देते। और जब उनको जल्दी होती है तो मटेरियल को इतना बर्बाद करके देते हैं कि उसकी फिनिश का कोई अता पता नहीं होता। क्लाइंट मांगता क्या है, पहुंचता क्या है, कुछ नहीं पता। तो टाइम लिमिट्स की कोई वो नहीं है। बट क्या है कि जब मैंने ये मार्केट की परेशानी समझी और सोचा, तो मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि हम कुछ ऐसे डाइनिंग बेस बनाए और अपने पास रेडी स्टॉक रखे, जिससे कि जो शोरूम वाले बेचारे जो ऑर्डर देते हैं, जिनको 15 दिन बोल के भी 2-2 महीने तक माल नहीं मिलता, तो उनके लिए हम रेडी स्टॉक बना के रखें और ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए कि जो कि बहुत सुंदर हो और जो रेगुलर चलते हो, और सबसे बड़ी बात की कॉस्ट इफेक्ट हो। क्योंकि अगर वो ऑर्डर देते हैं तो एक डाइनिंग 6 सीटर का जो डाइनिंग बेस है मेटल का, वो 60-70 हजार रुपए कॉस्ट कर जाता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने प्राइस को भी पूरा कंट्रोल करने के लिए अपने खुद के डिजाइन बनाए और उन डिजाइनों को बनाने के बाद मैंने उनकी बहुत बल्क मात्रा में प्रोडक्शन चालू करी। अब क्या होता है कि जैसे कि एक डिजाइन कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 दिन 3 दिन खत्म हो जाते हैं, R&D होगी। बेसिकली इन सब पीसों की मैंने टोटल R&D कर रखी है। और अब तो लड़के भी इतने हैबिचुअल हो गए कि जो 3 दिन के अंदर एक डाइनिंग बनना होता है, वो आधे दिन के अंदर डाइनिंग खड़ा कर देते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायल एंड एरर के थ्रू, जैसे हम फर्नीचर की भी बात करते हैं, बेस्पोक फर्नीचर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को उसको 3 बार 4 बार बनाना पड़ता है। राइट। आपने वो डिजाइन्स जो कि बहुत जेनेरिक हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनको फाइनलाइज कर लिया, उनके फर्मे बन गए, आपकी टीम भी उस हिसाब से स्किल्ड है, इसलिए शायद आप उनको कॉस्ट इफेक्टिवली और टाइमली डिलीवरी कर पाते हैं। पैसे भी बचते हैं और टाइम पे भी हो जाता है। यही वजह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह कि हम लोग इस तरह से करते हैं कि लोगों को समय पे माल मिल जाए, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए जी। क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में रिटेल भी करता हूँ, जो मेरे से पिंटरेस्ट वगैरह से लोग वग आते हैं, राइट, तो मैं उनको मटेरियल देता हूँ। जब मेरा मटेरियल समय पे पहुंच जाता है और चीज उनको बढ़िया आती है, तो वो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि यार कि चलो हमने उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। चलिए, ठीक बात है। अब मुझे एक सवाल वापस पॉलिश के ऊपर हम फिर से जाएंगे। पॉलिश में हम कौन कौन से कलर्स अचीव कर लेते हैं? गोल्ड, रोज गोल्ड तो हम देख रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कलर्स होते हैं? गोल्ड, रोज गोल्ड तो ये कॉमन है, ये सबसे ज्यादा चलते हैं। बट हम ब्लैक के अंदर चले जाते हैं, हम ब्रॉन्ज के अंदर चले जाते हैं, हम कॉपर के अंदर चले जाते हैं। तो ये फिनिशेस हम बनाते हैं गोल्ड, रोज गोल्ड, कॉपर, ब्लैक और शैंपियन कलर। राइट। तो ये सब ब्लैक इज आल्सो कॉमनली नोन एज ग्रेफाइट। मैं उस समय टर्म याद कर रहा था, अगर आपको याद हो। तो ब्लैक इज आल्सो नोन एज ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर कार्बन कलर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। उससे मिलता जुलता होता है वो। इसको क्रोम एंड हाई ग्लॉस दोनों में कर सकते हैं। राइट। चलिए, अब हम चाहते हैं कि वो कंज्यूमर्स जो बहुत सारे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, आपने क्या बना के रखा है वो दिखाएंगे, लेकिन बिफोर वी गो टू द फैक्ट्री, बात अपना शोरूम पे जब हम जाएंगे उससे पहले एक बार बता दें कि दिस वीडियो वाज एन इमोशनल वीडियो फॉर मी। बहुत अच्छा लगा। आई वांट बिकॉज वी हैव बीन ट्रैवलिंग, आई हैव ट्रैवल्ड यूरोप, चाइना, इंडिया एंड ऑफ कोर्स
different parts of the world as well. We have been traveling to Turkey, Malaysia, Singapore, Thailand, and all these countries. But I mean, people have been trolling me for shooting a lot of abroad videos. But this is the right time. I think we should highlight Indian production companies. I request all the Klepper family members to please come forward and support Indian manufacturers. चलिए, अब हम चलेंगे कीर्ति नगर. We'll see some final products, right? Right, okay? sir. चलिए. All right, so time to show some designs. We are back again. वापस हम कीर्ति नगर में आ गए अभी. हाँ जी. ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमारे टॉप सेलर कौन कौन से डिजाइन हैं? सर आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर. जी. ये देखिए सर, ये 8 सीटर के अंदर है. ये ऑडी डिजाइन है. राइट. और ये गोल्ड टाइटेनियम पीवीडी के अंदर, ओरिजिनल पीवीडी के अंदर बना हुआ है. ये 8 सीटर है. और एक बहुत अच्छा सुंदर जो डिजाइन चलता है हमारा, ये क्रॉस के अंदर चलता है. इसको हमने इस पिलर को पूरी तरीके से इसको ट्विस्ट किया हुआ है. मतलब स्ट्रेट ना दे के लोग सीधा सीधा पाइप लगा देते, बट ये शीट मेटल के अंदर हमने इसको पूरा ट्विस्ट किया हुआ है. राइट. देखिए अब. चलिए सुनिए जी, 2-3 चीजें हम आपसे पूछेंगे. एक तो जो प्लीज कम दिस साइड, पॉलिश के बारे में जैसे आपने फैक्ट्री में बताया कि हम सारे फिनिशेस अचीव कर लेते हैं. हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्या मेजर्स हैं, वो क्या प्रिकॉशंस हैं आप लेते हैं कि आपके जो यूनिट्स हैं उनमें इतना परफेक्शन है. और इंटीरियर का काम जो है वो डिटेल का काम है. जो लोग एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट बायर्स हैं, जो इंटेलिजेंट बायर्स हैं, वो डिटेल में अपने फर्नीचर को देखना चाहते हैं. तो उनके लिए हम आपको बता दें कि जितना डिटेलिंग का काम आपने किया है ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, स्पेशली फैब्रिकेशन एंड पॉलिश को लेकर. यहाँ पे देखिए फैब्रिकेशन है, बट यू कांट सी द फैब्रिकेशन वर्क. वो एक्स्ट्रा पर वो जो होता है ना, वो सब नहीं है. चलिए कमिंग बैक टू दिस नाउ, ये आप बता रहे हैं कि अब इसमें कैसे परफेक्शन अचीव किया है वो बताएंगे. सर देखिए, इसको हमने पहली बात तो इसके अंदर हमने कोई पाइप यूज नहीं किया. ये टोटल शीट मेटल के अंदर बना है जी, जिंदल की शीट के अंदर बना है. और इसको हमने पूरा बना के इसको ट्विस्ट किया हुआ है. आप देखेंगे कि इसके अंदर स्ट्रेट नहीं है. ये यहाँ से देखेंगे तो ये जाके सीधा 45 डिग्री पे बैंड हो जाता है. ठीक है. तो ये चीज हम लोग करते हैं कि कोशिश करें कि हम चीज बड़ी यूनिक बनाएं. राइट. ओके. अब ये क्या है? ये सेंटर टेबल है. ये सेंटर टेबल है सर. ओके. कुछ सेंटर टेबल के डिजाइन भी हमारे पास ऐसे हैं, बट ये सोल्ड आउट है. या है ना. सेंटर टेबल से ज्यादा फोकस हमारा डाइनिंग पे है. लेकिन फिनिश को देखें तो ये कौन सा फिनिश है जो आपने अचीव किया है? ये गोल्ड मैट फिनिश है. मैट फिनिश है ये. एक और फिनिश आता है इसमें, गोल्ड में शाइन आता है, क्रोम फिनिश. मतलब गोल्ड शाइनी हाई ग्लॉस. गोल्ड मैट आता है, गोल्ड ब्रश गोल्ड आता है, गोल्ड थोड़ा मैट एंड विंटेज फिनिश भी आता है. ये भी एक फिनिशेस है. बिल्कुल बिल्कुल. विंटेज में थोड़ा सा डार्कनेस होता है, ब्लैक होता है. हाँ, थोड़ा सा जैसे कि एंटीक मान लें. हाँ. तो जैसे अभी आप देखेंगे ये वाला. अच्छा ये है. ओके ओके. तो ये एंटीक के अंदर है. बहुत रेयर लोग बनाते हैं एंटीक के अंदर, बट हमारे पास हमेशा ऐसे पीस अवेलेबल होते हैं. ओके. और फैक्ट्री के अंदर स्टॉक में हमेशा रहते हैं. डन. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ और डिजाइन दिखा से आपसे. ये एक और डिजाइन है और मैं साइज को लेके मेरा कंसर्न है. 6 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर और 8 सीटर, 12 सीटर, 10 सीटर, क्या सबके बेस इक्वल सेम साइज के होते हैं? अलग नहीं सर. 8 सीटर, 10 सीटर, 6 सीटर के बेस के साइजेस अलग अलग होते हैं. अच्छा. क्योंकि एक 6 सीटर होगा उसके ऊपर करीबन 100 से 150 किलो का मार्बल आएगा. वो उसके हिसाब से डिजाइन होता है. और जो अपना 8 सीटर होगा तो वो बेसिकली बड़ा साइज का होगा और उसका वेट ज्यादा होगा. अब जैसे ये 10 सीटर है, 8 सीटर है. तो इसकी लेंथ और विड्थ पूरी बड़ी होगी. आप इसके ऊपर चाहें तो 10 फुट बाय 5 फुट का पत्थर रख सकते हैं. और जो नेचुरल चाहें तो नेचुरल भी रख सकते हैं, जो कि बहुत हैवी होता है. ठीक है. हाँ. तो जैसे जैसे टॉप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉटम का साइज भी बड़ा होता जाएगा. और स्ट्रेंथ का भी ध्यान देना होगा. बिल्कुल. यानी कि जो अगर हम लार्ज साइज टेबल को अगर हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो उनके जो बेस होंगे वो ऑब्वियसली महंगे होंगे. बिल्कुल. चलिए, मतलब स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ जी. ओके. ये क्या है? ये भी एक, ये भी 6 सीटर डाइनिंग है. अब आप इस पे चाहे तो 6 सीटर रख सकते हैं, इस पे चाहे तो आप 8 सीटर रख सकते हैं. हमने ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है. कई लोग कहते हैं कि थोड़ा हमें छोटा चाहिए बट उसमें हमें 8 सीटर रखना है. तो जो ये डिजाइन है इसके ऊपर आप 8 फुट का पत्थर रख सकते हैं. और इसके ऊपर 6 सीटर रख सकते हैं. मतलब क्योंकि स्टार शेप में ना, इसको 8 सीटर नहीं रख सकते. नहीं, इसको हम 8 सीटर नहीं बना सकते. बना सकते हैं बट ये 6 सीटर है. यस. ओके. तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाएगा. हाँ, थिकनेस बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा. ओके. रहेगा वो 202 में. हाँ, 202 और 304. और 304. अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है ना. यस. ये इसके बारे में मुझे बता दें सर. ये हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमने कहा कि कुछ ऐसा ट्विस्ट करके कुछ बनाए कि उसके अंदर अलग अलग फ्रेमिंग हो जाए. तो इसलिए हमने कुछ बैठ के डिजाइन किया, सोचा और इसके अंदर इसको हमने डिजाइन कर दिया कि कुछ ऐसे फाउंटेन की तरह कुछ आ रहा है. या फिर एक वर्ल्ड कप जैसे होता है कि एक वर्ल्ड कप का कप लेके तो वो घूम रहा होता है. तो वो कॉन्सेप्ट डिजाइन में लेके कुछ ऐसा हमने इसको डिजाइन कर दिया. मुझे इसमें थोड़ा सा डीएनए वाली फील आ रही है. हाँ, बिल्कुल डीएनए होता है ना. बिल्कुल वो भी हम कह सकते हैं. अब जो इसका बेस है कभी कभी हम देखते हैं कि वो विनियर प्लाई में होता है. बट दिस पर्टिकुलर पीस इफ वी टॉक अबाउट, इसका जो बेस है वो मेटल के अंदर. आप विनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. बिल्कुल. ओके. ये एक हमारा हाई ग्लॉस में है ना. चलिए
We'll go to the next one now. एक सब सेंटर बेस होते हैं कि कुछ क्लासिक फिनिश में भी आते हैं? नहीं, क्लासिक फिनिश के अंदर जैसा एंटीक फिनिश हो गया। No, what I'm saying is basically my mistake. What I meant basically 4 legged होते हैं कि सारे सेंटर बेस ही आप बनाए आपके पास? ज्यादातर जो मैं बनाता हूँ सेंटर बेस ही बनाता हूँ। 4 टांगों के अंदर तो एक्चुअली में वो सब खत्म हो चुका है, वो तो बहुत नॉर्मल डिजाइन हो गई कि 4 डंडे खड़े कर दिए, ऊपर फ्रेम लगा दिया, तो वो तो मैं नहीं बनाता। ऑलराइट, ठीक है, ओके। जो जितने भी डाइनिंग टेबल होते हैं उन सब का फोकस एक्चुअली टॉप के ऊपर ज्यादा होता है। तो आई पर्सनली बिलीव, हम तो एडवाइस भी करते हैं लोगों को कि आप अपने बेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करें। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ सेलर्स, दे ट्राई टू पुश रियली हार्ड कि अब सेंटर का बेस देखिए, दिस इज सो चमकोदार, दिस इज सो ब्लाइट, दिस इज सो हैवी। एक्चुअली इट डजंट मैटर, ऑल यू नीड इज बेसिकली स्ट्रेंथ, और थोड़ा सा अगर डिस्टेंस से दिख रहा है तो वो थोड़ा सा डिजाइनर हो, बहुत ज्यादा फोकस नहीं, टेप टॉप के ऊपर मेरे ख्याल में फोकस होना चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ पे फोकस होना चाहिए, है ना? चलिए थोड़ा सा अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या जो हमारे डिजाइन है आधे चाइना इंस्पायर्ड और दे आर टर्की इंस्पायर्ड और इटली इंस्पायर्ड, ये हमारे खुद के डिजाइन हैं? हाँ, नहीं, ये सारे डिजाइन मैं खुद डिजाइन करता हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं और से दिखे तो वो मैं डिजाइन नहीं करता जी। तो सारे डिजाइनों को लेके मैं मतलब कंबाइन करके फिर उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिजाइन निकाल देता हूँ। राइट, जैसे अभी हम ये फैक्ट्री में देख रहे थे। हाँ, देखो डीएनजी जैसा है, डॉल्फिन गाबाना जैसा, डीआईडी करके, मतलब बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम लोग डिजाइन देखते हैं और उनको कंबाइन करके कुछ नया डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला डिजाइन है जी, ये ट्विस्टर एक्स बोलते हैं हम, और ये बहुत चुनिंदा ग्राहकों को देते हैं, शोरूम वालों को। अच्छा, दिल्ली के अंदर हम सिर्फ पर्टिकुलर 1 या 2 शोरूम वालों को देते हैं, बाकी हम ये किसी को भी सप्लाई नहीं करते। Alright, you started a very interesting conversation. You have been working with lot of people that I know of, lot of wholesalers, lot of retailers you know of, showrooms को आप सप्लाई करते हैं। हाँ, तो there's a different pricing policy, right? तो हाँ, मेरी मेन पॉलिसी क्या है कि जब मैंने डाइनिंग बेस शुरू किया था तो मैंने कभी रिटेल करने की सोची नहीं थी। एक्चुअली में जो शोरूम वाले हैं वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मेरे कई शोरूम वाले जानकार हैं, तो मैं उनके साथ में बैठता था, तो वो बेचारे परेशान रहते थे मेटल बेस के लिए, डाइनिंग बेस के लिए, कि परेशान हो रहे हैं। ग्राहक उसने फैब्रिकेटर ने बोला 15 दिन दे रहे हैं 2 महीने के अंदर जी। तो उस चक्कर में मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया 2022 के अंदर कि मैंने ये डाइनिंग बेस बनाते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमारे पास रेडी स्टॉक रखा हुआ है 70, 80, 90, 100 पीस। आपको जो पीस चाहिए आप ग्राहक से ऑर्डर लीजिए और हमसे उठा के ले जाइए। ठीक बात है। तो आप तुरंत बेसिकली अभी अगर रिटेलर को लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लुक एट दिस वन नाउ। देखिए, आई डोंट नो अबाउट दैट साइड, वो जो बिजनेस का साइड है दैट आई एम नॉट श्योर। लुक एट दिस वन, वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी बेसिक, एंड आई लाइक द नीटनेस, वेरी नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छा बनाया है ये भी, यस, है ना? चलिए अब हम चलेंगे अगला। ये कौन सा कलर है? ये रोज गोल्ड के अंदर है। ये रोज गोल्ड हल्का सा डार्क है, कॉपर कह सकते हैं इसको। अच्छा, ओके। और बेस भी सेम फिनिश के अंदर है। ऑलराइट। और ये किस शेप में, बॉक्स जैसा? हाँ, ये बस बैठे हुए थे, कुछ नया डिजाइन बनाना था तो कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया। ये भी 6 सीटर है। अच्छा, बट बहुत प्यारा पीस है, आगे पीछे सबका एकदम डिजाइन सेम है और ये बहुत हैवी पीस है। इसमें आप चाहो तो 7 फुट का पत्थर भी रख सकते हो। और एक और डिजाइन है। हाँ जी, ओके। ये भी काफी हिट रहा था। हाँ, ये तो पहले बहुत बिकता था और ये बहुत कॉमन डिजाइन हो गया जी। तो अभी इसलिए पीछे रखा हुआ है क्योंकि ये काफी पहले बहुत बिकता था, अब बहुत बिकना कम हो गया। चलिए, तो ये है। सिंस द वीडियो इज कमिंग टू एन एंड, कुछ एक जो चीज़ें हैं वो हम पूछ लें। कुछ डिज़ाइन हमने यहाँ पे डिस्प्ले दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप होलसेल रिटेल दोनों के लिए काम करते हैं, एंड यूजर्स को भी आप देते हैं, प्राइसिंग में ऑफ कोर्स आई एम श्योर फर्क होगा। नाउ मेजर क्वेश्चन इज, जो सबसे बड़ा ये है कि क्या आपके पास एक कैटलॉग होता है सारे डिजाइन का? हाँ जी, मेरे पास एक कैटलॉग है और शोरूम वाले जो मांगते हैं मैं उनको कैटलॉग आप भेज देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली होने वाला है जो शोरूम ऑपरेटर्स हैं। हाँ, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि शोरूम वाले के लिए माल बनाएं और स्टॉक रखें, क्योंकि उनके पास कब ग्राहक आ जाए, कब ऑर्डर आ जाए उन्हें नहीं पता। तो वो मेरे को कॉल करें और तुरंत मंगाएं और अपनी। दिस इज वन। सेकेंडली, किसी तरह का आप कस्टमाइजेशन अभी नहीं करते क्योंकि एक प्रोटोटाइप बनाने में कॉस्ट बहुत आती है और आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड हैं ये काम करने के लिए, राइट? बिल्कुल। आपका स्पेशलाइजेशन केवल डाइनिंग टेबल बेस में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप के साथ चाहते हैं। हाइपोथेटिकली, इफ अ शोरूम ओनर इन हैदराबाद और बैंगलोर और चेन्नई, he is looking for a tabletop along with base. Do you provide tops also in certain cases? बिल्कुल, अगर उनको चाहिए नेचुरल ऑनेक्स चाहिए, कंपोजिट चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी मार्केट प्राइस होंगे हम लोग खुद नहीं बनाते हैं ये हम बाहर से कंपोजिट वगैरह नेचुरल ऑनेक्स हम बाहर से लेके बाहर बनवा के और प्रोवाइड करवा देते हैं। बट रेट जो भी होता है मार्केट के रेटों से हम बराबर कर देते हैं। फिर से एक बार आपने इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट की, प्लीज कम लिटिल क्लोजर। प्राइजेस हम
कैसे डिस्क्लोज करते हैं, क्या प्राइसिंग की, क्या क्वालिटी को लेके प्राइसेस हैं या कोई फिक्स्ड प्राइसेस है हमारे, या कैटलॉग बेसिस पे प्राइसेस हैं? देखो हमारे जो डाइनिंग बेस के वो प्राइसेस है वो एकदम फिक्स है हमारे जी। जो शोरूम वाले हैं वो कभी एक पीस नहीं लेता, वो एक से ज्यादा पीस लेता है, मतलब 5, 6, 10, क्योंकि उनकी दिल्ली में गाड़ियां लगती हैं। तो वो कहते हैं सुनील जी हमारी गाड़ी लग रही है, मेरे को 5 पीस चाहिए, तो उनके लिए अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट शोरूम वालों के लिए हमेशा अवेलेबल है। क्योंकि वो कहते हैं सर आप मेरे को 5 डिजाइन दे दो, 5 पीस दे दो, तो मेरे पास ही पैसे आते हैं और उनका भी प्रॉफिट होता है क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा लेस कर देता हूँ, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है। ऑलराइट। अगर बल्क ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं और हमारे पास अपने खुद के डिजाइन हैं, अगर हम उनको बेस्पोक करा रहे हैं, सपोज आई एम लुकिंग फॉर 50 पीसेज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजाइन, तो वो आप कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डन। वी मेड अ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन प्रोडक्ट्स। ऑल्सो वी सेड इन द बिगिनिंग, इन द मिडल ऑफ द वीडियो, दैट प्लीज प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स, abstain Chinese products. We should come forward and help people like Sunil ji, those who are working hard and striving literally to come to the right light, right? Right, sir, okay. right. Last but not the least, a lot of people using metal, but केयर को लेके बता दें कि क्योंकि आप वैसे तो टाइटेनियम पॉलिश कर रहे हैं ऑलरेडी, पर फिर भी इनको लेके कुछ स्पेशल केयर जो हमारे कंज्यूमर्स को, एंड यूजर्स को इसके अंदर कोई भी जो इसकी खास बात यह है कि ये टाइटेनियम कोटिंग के अंदर कोई भी स्पेशल आपको कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको कॉटन का पुराना कपड़ा लेना है, बिल्कुल कॉटन का, या अगर मैं कहूँ तो पुरानी बनियान ले लीजिए जिसमें छेद हो चुकी हो बस उससे कुछ नहीं करना। हाँ, उससे आपको हफ्ते में एक बार मैं इसको कुछ भी ना लगा के सिर्फ आप इसको साफ करते रहिए और ये सालों साल आपका साथ निभाएगा। मतलब do not use harsh chemicals. No. So I will request all the Klepra family members to please come forward and get in touch with Sunil ji. It was pleasure meeting you. Trust me, ये पूरा स्टील के ऊपर एक हमारा learning process था. It was like a course. Thank you very much for letting us walk along with you, and we got to learn a lot of things. Right? Thank you very much. Thank you, sir.